الله بسم الله ألف ذلك يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون العظيم. Jazakallah khair, Myra. Now we'll have the introduction of today's speaker. She is serving as a consultant physiotherapist at Smile Institute of Child Health and Development Center. She is a vice president of MSS Maharashtra Service Society Akola for the term 2022-23. She is a health counselor and educator for women. She is City Secretary of Women's High Wing JIH Akola. She is none other than Dr. Nikhat Uruj. Let's welcome her. Ma'am, the stage is yours. Jazakallah khair. Jazakallah team Stepping Stone for having me here. I'm grateful and I'm really obliged for having me here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nahmadu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Majid wal Furqanil Hamid. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dear all present over here in today's live session, I have recently recited the words of Quran, Surah Ibrahim, and the translation of the verse is that Allah Ta'ala says in the Quran, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को दोबाला कर दूंगा. And as we all know that today's topic is being healthy is not a state but it is a way of life. हमारे पास अल्लाह ताला की दी हुई बेशुमार नेमतें हैं. हम सब देखते भी हैं और हम लोग रोज़ाना डे टू डे लाइफ में उन तमाम नेमतों से मुस्तफ़ीद भी होते हैं, उससे फ़ायदा भी उठाते हैं और उससे बेनिफिट हासिल करते हैं. तो इन तमाम नेमतों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक नेमत हमारी सेहत भी है, हमारी हेल्थ भी है. तो अल्लाह ताला ने ये नेमत हमको अता की है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस सेहत को सही तौर पर इस्तेमाल करें. अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमको दी है उसको सही राह में, सही तरीके से, सही टाइम पर उसका इस्तेमाल करें, यूटिलाइजेशन करें. I request to the host, please allow me to share my screen. I'm unable to share my screen. And let me know, am I audible to all? Yes, ma'am, you're audible.
So let us start with our topic. Being healthy is not a state, but it is a way of life. First of all, I would like to know, I want it a two-way communication instead of one-way communication. I want to have it a two-way communication. You can answer me in a chat box, or you can open your mic. I want to know, would you like to tell me what is health exactly? Any? Health. My name is Shadeen, and I'm from Saudi. I'm currently in Saudi Arabia. What I think health is that completely when your body is fine physically and mentally, and you're able to do all your daily functions. That I think is health. Yeah, mashallah, you are very close to the definition of exact health. Anybody else want to share what exactly health is? Yes, anyone please? Okay, we'll move further. According to WHO, World Health Organization, health is a complete state of physical, mental, social, and spiritual well-being. When we are having the sum of these four thing in our day-to-day life, in our total lifestyle, we can define our health. The sum of these four, that is physical, mental, social, spiritual, and well-being, is called a health. Now, first of all, we'll come to the physical health. What exactly physical health is? Because we are having very short duration of time, and the topic is very broad spectrum, but we have to sum up in just 30 minutes. So we'll come to the first point, that is physical health. According to WHO, health is a well-being of physical health. And what exactly physical health is? It is a overall. It is the name of overall lifestyle modification. What we do in our day-to-day life that define our physical health. And first of all, what comes in physical health? That is our food and nutrition, food and dietary habits. What we eat in a day, what we are having exactly in our total meal plan. It is very uttermost important thing to define our physical health, to maintain our physical health. The second one comes sleep. Our sleep pattern is very important to maintain our physical health. The third one comes, that is our hygiene, personal hygiene. And fourth one is daily exercise routine. So we'll come to our first point, that what we should have in a day to having a healthy food and healthy dietary habits. तो हेल्दी डाइटरी हैबिट्स जो डिफाइन करती है, वो ये हमारे जो है फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. Like we should not be a fond of junk food and all. We should be having a healthy food habits and healthy meal plan in our whole day. उसमें आएगा आपका सबसे हेल्दी मील प्लान और हेल्दी डाइटरी फाइबर्स कम्स दैट के हमारे खाने में विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो एंड एंटीऑक्सीडेंट हो, फाइब्रस फूड हम जो है हमारे डेली रूटीन का, डेली डाइट का हिस्सा रखें. ये सारी चीज़ें जो अंडर आती है, देखेंगे हम कि जो हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स है और मिल्क है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, पनीर उसके अंदर आता है, और ड्राई फ्रूट्स आएंगे, प्रोटीन्स जो होते हैं, और सबसे रिच सोर्स जो होता है प्रोटीन का आफ्टर मीट एंड बीफ जो आता है, चिकन भी होता है रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन इज़ वेरी नेसेसरी टू बिल्ड आवर मसल पावर. डे टू डे लाइफ में हमारा मसल बिल्डिंग, मसल पावर होना जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग
हाउस वर्कर्स भी हो गए और बहुत सारे आई गेस यहाँ पर स्टूडेंट्स भी है। तो लेट मी टेल यू कि एक स्टूडेंट की 1 घंटे की पढ़ाई जो डिफाइन करती है वो एक मजदूर के, एक वर्कर के पूरे दिन का जो काम वो करेगा, उतना अगर एक स्टूडेंट स्टडी कर रहा है तो गोया उसने पूरे दिन भर में एक मजदूर की तरह काम किया। तो हमको बहुत ज़्यादा हमारी जो है डाइटरी नीड्स बढ़ जाती है जब व्हेन वी आर स्टडिंग, व्हेन वी आर हैविंग अ लॉन्ग टर्म रीडिंग प्लान्स एंड सच ट्यूशंस एंड ऑल दैट। तो हमको हमारे फूड हैबिट्स को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हमारा डाइट, हमारा खाना पीना सही होगा तो ऑब्वियसली हमारा एक अच्छा बॉडी, एक साउंड बॉडी हम जो है जनरेट कर पाएंगे। और हम तो जानते ही है कि साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। तो हमारे दिमाग को, हमारा जो है ब्रेन को यूटिलाइज करने के लिए, ब्रेन पावर को जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी हेल्थ को जो है मेंटेन करना होगा। और उसके अंदर सबसे पहले हमारे जो है डाइटरी हैबिट्स और फूड हैबिट आएगी। तो उसमें हमें हेल्दी फूड हैबिट्स को अपनाना होगा, जिसमें आप डेली एक कंप्लीट मील प्लान जो होता है। तो आपकी थाली में जब आप खाना लेते हो तो चपाती हो, उसके अंदर दालें हो, पल्सेस उसके अंदर हो, एक फ्रूट, 1 से 2 किस्म के फ्रूट उसमें हो। प्रोटीन अगर आप लेते हैं तो अगर कोई नॉन जो वीगन को, बहुत से लोग वीगन होते हैं जो नॉनवेज खाना पसंद नहीं करते हैं, तो वो सोया प्रोडक्ट्स जो है यूज़ कर सकते हैं। और सोया चंक्स उनकी डाइट में हो, वो राजमा वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रूट्स जो है 2 से 3 टाइप के आपको इस्तेमाल करने हैं। डेली मिल्क आप जो है आपकी डाइट का हिस्सा होना चाहिए। और जैसे कि कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने जो है दूध की खासियत बताते हुए फरमाया कि दूध इज अ कंप्लीट डाइट। एक दूध के अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो है एडअप अल्लाह ताला ने कर दिए हैं जो हमारे दिन भर के एक खाने में होने चाहिए। तो दूध भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम और विटामिन्स और प्रोटीन, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। आप जो है इसको भी अपना रूटीन का हिस्सा बनाएं। और फाइब्रस फूड हम खाएं, जैसे बहुत सारा सलाद का हम इस्तेमाल करें। ये तमाम चीज़ें जो है हमारे जो है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में आएंगी। उसके बाद व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू अवॉइड, दैट इज जंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वाइट ब्रेड। शुगर का इस्तेमाल हमको कम से कम करना है, क्योंकि शुगर जो है तमाम बीमारियों की जड़ है। आज जो है आप देखेंगे पहले एक एज पैटर्न हुआ करता था, उसमें एक 30-40 के बाद जो है शुगर या डायबिटीज़ वगैरह हुआ करती थी। लेकिन आज हमारे इतने अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स की वजह से आज 8 से 10 साल के बच्चों को भी डायबिटीज़ हो जाती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम हमारे खाने में शुगर की इंटेक को बहुत ज़्यादा हमने बढ़ा दिया है। हम जो है मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मीठा खाने में भी अगर आप शुगर के, आप इफ़ यू आर हैविंग अ स्वीट टूथ, देन यू कैन गो विथ अ ब्राउन शुगर इंस्टेड ऑफ वाइट शुगर। तो और कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें हमको जो है अवॉइड करनी है, लाइक पोटैटोज़। और राइस का इस्तेमाल कम करना है, स्टार्ची फूड का इस्तेमाल हमको कम करना है। तो ये सारी चीज़ों को हम एक रिप्लेस कर सकते हैं हेल्दी फूड से। तो अगर आप पोटैटो लवर है तो आप उसको जो है स्वीट पोटैटो से आप रिप्लेस करेंगे। अगर आपको राइस बहुत ज़्यादा पसंद है तो वाइट राइस को आप ब्राउन राइस से रिप्लेस करेंगे। इफ़ यू आर हैविंग अ स्वीट टूथ एंड यू आर फॉन्ड ऑफ शुगर एवरी डे, तो यू कैन रिप्लेस योर शुगर स्वीट टूथ विद अ ब्राउन शुगर एंड यू कैन हैव अ जैगरी ऑल्सो इंस्टेड ऑफ ब्राउन शुगर। तो ये सारी चीज़ें आप अपने फूड का हिस्सा बना सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी बहुत बार ये होता है कि उसके अंदर एक सोडा जो है और केमिकल जो है मिलाया जाता है, तो दैट इज़ आल्सो नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, आवर लिवर, आवर किडनी हेल्थ। तो ये चीज़ों को भी हमें अवॉइड करना है। और जितना हो सके तो हमें सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह भी अवॉइड करनी है, चॉकलेट्स और ये चीज़ों को भी अवॉइड करना है। तो ये हमारी हेल्दी हैबिट्स अगर होंगी तो यकीनन हमारा एक अच्छा बॉडी, एक अच्छा साउंड बॉडी हम जो है जनरेट कर पाएंगे, जो हमारे साउंड माइंड के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, at a most important thing. उसके बाद we come to the next slide, that is in our physical health. First is what we have seen earlier, our diet. So what we have to have in our daily meal and what we have not to have in our daily meal हमने देख लिया। अभी हम देखें हमारा स्लीप पैटर्न भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें 6 to 8 hours की स्लीप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
और इसके लिए भी हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सोने से पहले 2 hours बिफोर वी हैव टू ऑफ आवर स्क्रीन्स। आजकल ऐसे हो गया है कि हम सोते टाइम भी मोबाइल और लैपटॉप हो, टीवी हो और मोबाइल फ़ोन्स हो या अदर टाइप के जो भी स्क्रीन होते हैं, तो हम जो है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं और हम सोते-सोते भी बहुत बार हेडफ़ोन्स हमारे कान में होते हैं। तो वी हैव टू अवॉइड ऑल दीज़ थिंग्स, क्योंकि 6 to 8 आवर्स की जो स्लीप है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बॉडी के अंदर एक अच्छा जो है साउंड सिस्टम बनाने के लिए। तो अगर हम हमारे ब्रेन को शांत नहीं करेंगे, अगर हम हमारे ब्रेन को काम डाउन नहीं करेंगे, तो जो ये स्क्रीन से निकलने वाली गामा रेज होती है तो दैट इज़ वेरी हार्मफुल, और उसकी वजह से बहुत बार हम जो है बैड ड्रीम्स का भी शिकार हो जाते हैं, बहुत बार इरिटेबिलिटी का भी शिकार होते हैं, पीसफुल स्लीप हमको नहीं होती है, हम बहुत बार इंसोम्निया का भी शिकार हो जाते हैं, यानी हम 12 सोने की कोशिश करने के बाद भी हमको नींद नहीं आती है। तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ इंसोम्निया when we are using screen before going to bed. So being a student, being a mother, being a housemaker, we have to consider these things before going to bed, कि हमारा कम से कम अगर हमारा 11 बजे का स्लीपिंग टाइम है तो वी हैव टू शट डाउन ऑल दी स्क्रीन एट 9 PM। तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, और 6 to 8 आवर्स की नींद जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी इसलिए है कि पूरे दिन भर में हम जो है हमारा बॉडी और हमारा सारी जो है चीज़ें वर्किंग होती है, तो उसको रीजनरेट करने के लिए ये मिनिमम ड्यूरेशन जो है नेचुरली दरकार होता है। और अगर हम इतनी नींद नहीं करते हैं तो दैट मीन कि हम जो है हमारा फिजिकल हेल्थ को कहीं ना कहीं हम डिस्टर्बेंस का शिकार कर रहे हैं। और हम खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू स्लीप जस्ट आफ्टर ईशा बाय 8 PM और 9 PM। आज ईशा का टाइम अगर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू समर्स हियर, तो इट इज़ 8:30 और 9 PM तक वी कैन गेट फ्री हैविंग डिनर एंड ऑल, एंड वी कैन गो टू स्लीप बाय 9:30। लेकिन आजकल हम देखें कि सबसे ज़्यादा काम हम रात में करते हैं, दिन में हम सोने का शिकार हो गए हैं, लेट नाइट जागते हैं, और सुबह में जब उठने का असल वक्त होता है तो हम उस वक्त पर सो रहे होते हैं। और बीइंग अ स्टूडेंट ये चीज़ भी हमको जो है बहुत अज़बर कर लेनी चाहिए कि आपको अगर ये चीज़ याद करनी है फॉर लाइफ लॉन्ग, तो आपको मिडनाइट में जो तहज्जुद का वक्त होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। अगर आप इस टाइम पर स्टडीज़ करते हो, कोई चीज़ याद करते हो, और ज़रूरी नहीं कि आप जो है दुनियावी तालीम हासिल करें, इफ़ यू आर ऑल्सो मेमोराइजिंग कुरान, तो उस टाइम को भी आपको यूटिलाइज करना है जिस तहज्जुद का। और मिडनाइट का टाइम होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 AM to 5 PM। ये जो 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट to recall the things, to memorize the things, and to remember it lifelong। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम जो है अदर वे में हमारी फिज़िकल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और जब ऑब्वियसली हेल्थ डिस्टर्ब होगी, स्पेशली फिज़िकल हेल्थ डिस्टर्ब होगी, तो हमारा माइंड भी जो है जनरेट नहीं कर पाएगा, न चीज़ें हमको याद होगी, और फिर हम जो है इरिटेबिलिटी का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, हम ऑब्वियसली अल्टीमेटली हम खुद ब खुद शिकार होते चले जाएंगे। तो यही वजह होता है कि आज स्ट्रेस क्यों इतना ज़्यादा जो है स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, या स्टडीज़ के टाइम पे क्यों इतना स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, क्योंकि हम ये तमाम चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, और हमने जो है अल्टीमेटली हमारी बैड हैबिट्स को जो है बहुत ज़्यादा अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाया हुआ है। तो 6 to 8 आवर्स जो है स्लीप आवर्स है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ब्यूटी स्लीप। तो इफ़ वी आर अ गर्ल्स तो हमको हमारी ऑलरेडी स्किन का बहुत ख्याल होता है, हमको अपना फेस को हम बहुत ज़्यादा करते हैं, चार्मिंग रखना चाहते हैं। तो अगर आप चाहिए कि आपका स्किन भी ग्लो करे, आपका माइंड जो है बूस्ट अप रहे, तो देन यू हैव टू टेक अ कंप्लीट स्लीप ऑफ 6 to 8 आवर्स ड्यूरिंग नाइट आवर्स। इट डजंट मीन कि 6 to 8 आवर्स है तो हम 4 घंटे रात में सो जाए, 4 घंटे दिन में सो जाए, तो इट डजंट वर्क। जब आप ऐसे करते हो तो यू आर अल्टीमेटली हार्मिंग योर हेल्थ, एंड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है। तो ये चीज़ों का हमको ख्याल रखना है। फिर सोने से पहले एक काम हम हमारे सोने तो हम जो है रिकॉल करते जाए कि हम बावजू होकर सोए, अपना बेड को हम क्लीन करके सोए, और लाइट्स ऑफ होनी चाहिए, कोई भी लाइट ऑन ना करे, और जो है मौज़तैन होते हैं सोने के जो अस्कार उन तमाम का भी हम एहतमाम करें, ताकि एक पीसफुल और अच्छे से नींद हमको मिल सके, ताकि सुबह हम एक फ्रेश माइंड के साथ जो है वेकअप हो सके। इसके बाद नेक्स्ट कम टू द पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में तो ये हम जानते ही है कि हैंड वॉश हो, हम जो है बार बार कोई खाने से पहले, दिन में उठने से पहले हैंड वॉश की आदत हमारी हो,
कम से कम 10 मिनट्स तक हाथ को स्टार्ट में, अगर हम हमारा डे टू डे रूटीन चालू कर रहे हैं तो 10 मिनट्स तक हाथ को रब हमें करना है। फेस वॉश करना है कम से कम 3 टाइम्स अ डे। और वैसे तो हम नमाज पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हमारा 5 टाइम्स वजू होता है, तो वी डोंट नीड टू वॉश आवर फेस नॉट मोर देन 5। तो ये तो एक नेचुरल अल्लाह ताला ने हमको जो है दिया हुआ है। फिर उसके बाद शावर रूटीन हमारा हो, अभी समर्स भी चल रहा है तो इसका भी हम ध्यान रखें, डेली कम से कम एक बार शावर ज़रूर ले। अगर बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर टेम्परेचर होता है तो 2 टाइम्स अ डे वी कैन टेक अ शावर। वी कैन हमारे गम्स का हम जो है जो टीथ है उसका भी हम जो है ख्याल रखें, और उसमें फ्लॉसेस और बहुत सारे ऐसे आते हैं लोजेंजेस वगैरह, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों का ये तमाम चीज़ें जो है इट कम्स आर पर्सनल हाइजीन, तो इसका भी हमें ख्याल रखना है। एंड द फोर्थ वन दैट कम्स अंडर फिजिकल हेल्थ, दैट इज आर डेली एक्सरसाइज रूटीन। तो इसमें हम देखें कि हमारा डेली एक्सरसाइज रूटीन होना चाहिए। एक ये भी एक बहुत बड़ा एक फॉल्स हमारा बन गया है कि अगर हम वी आर हैविंग अ मोर वेट देन अदर्स, और वी आर हैविंग मोर वी आर ओबीज, देन ओनली वी नीड टू डू एक्सरसाइज ऑन डेली रूटीन। हमारा एक है कि हम सोचते हैं कि हम मोटे हैं या हमारा वेट बहुत ज़्यादा है तो तभी हमको एक्सरसाइज करके पतला होना है। नहीं, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। हमको जो है अगर हम स्लिम ट्रिम भी है, हमारा वेट भी मेंटेन है, तो हमको अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कम से कम 15 to 20 मिनट्स का डेली एक्सरसाइज रूटीन हमारा सबका होना चाहिए। चाहे हम पेरेंट्स हो, चाहे हम स्टूडेंट्स हो, या हम कोई भी, यानी हम जॉब वर्कर्स हो, जो भी हम काम कर रहे हैं तो डेली रूटीन पर एक्सरसाइज का हमारा रूटीन होना चाहिए। और अल्लाह ताला भी कहता है ना कि हमें जो है अल्लाह ताला को कवी मोमिन पसंद है, बट कमज़ोर मोमिन है। तो हमें जो है हमारी बॉडी को जो है हेल्दी रखने के लिए हमारा डेली एक्सरसाइज रूटीन है। एक्सरसाइज रूटीन में सबसे पहले वॉकिंग आएगा, कि हमारा जो है वॉकिंग पैटर्न हो हमारा, क्योंकि आजकल हम लोगों ने चलना बहुत ज़्यादा हम भूल ही गए हैं। अगर बाजू में भी कोई शॉप पे जाना होता है तो हम हमारा व्हीकल लेके, 2 व्हीलर लेके हम निकल पड़ते हैं। तो अगर बाजू में जा रहे हैं या महल्ले पड़ोस में हम कोई शॉप्स पर जा रहे हैं तो वी कैन यूज़ आवर बाइसिकल, तो हम जो है बाइसिकल का इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ हैविंग आवर मोपेड एंड व्हीकल्स एंड ऑल। और वॉकिंग रूटीन हो कम से कम 10 मिनट्स का। अगर हमको ये चीज़ अवेलेबल नहीं तो घर में ही हम टाइमर लगा के कम से कम 15 मिनट जो है वॉक ज़रूर करें। उसके बाद हम जो है स्विमिंग भी कर सकते हैं अगर इट इज़ इजीली अवेलेबल देयर एट योर प्लेस। और ट्रेडमिल हो गया, ट्रेनिंग है, ये तमाम चीज़ें जो है आती है। और उन सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा वाटर इनटेक भी हम जो है मेंटेन करें। और एक हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, एक हेल्दी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, हमारे तमाम ऑर्गन्स को प्रॉपरली वर्क करने के लिए जो मैक्सिमम जो है वाटर इनटेक दरकार होता है, दैट इज़ 12 to 14 ग्लास ऑफ वाटर अ डे। वी शुड हैव 14 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे, दैट इज़ वेरी मस्ट, कि हमको इतना जो है पानी का इंटेक, वाटर इंटेक हमारा बढ़ाना है। अगर हम नहीं इस्तेमाल करते तो हम इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि बहुत सारी जो डिसीज़ेज़ आगे जाके होती है तो वो बहुत बार हमारा वाटर इंटेक कम होने की वजह से भी हम जो है इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियों में हम गिरफ्तार हो जाते हैं। इसके बाद जो है हेल्दी होने के लिए जो सेकंड चीज़ हमने देखी अकॉर्डिंग टू आर मेंटल हेल्थ, आर साइकोलॉजिकल स्टेटस। एंड इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो थिंकिंग है, सेकंड चीज़ जो आएगी वो हमारा बिहेवियर है, एंड थर्ड वन कि हम जो है डिसीजेस का भी शिकार हो जाते हैं अगर हमारा मेंटल हेल्थ जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो थिंकिंग में सबसे पहले हम देखते हैं, थिंकिंग में हम देखेंगे कि थिंकिंग में सबसे पहली चीज़ जो आती है, थिंकिंग 2 टाइप्स की होती है, पॉजिटिव थिंकिंग एंड निगेटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग में हम देखेंगे कि इट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग हैव अ पावर। इसमें इतना बड़ा पावर अल्लाह ताला ने रखा है कि अगर हम हमारे जो है मेंटल हेल्थ को जो है पॉजिटिव करना चाहते हैं तो हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी भी जो हम सोचते हैं एक टाइम के बाद इंसान जो है वैसा ही बन जाता है। तो और कुरान में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ना कि हम जो है बंदे के गुमान के साथ है। तो गुमान क्या है? गुमान इज़ आवर थॉट प्रोसेस, कि व्हाट वी थिंक अबाउट आवरसेल्फ, अबाउट अदर, अबाउट आवर पेरेंट्स, अबाउट आवर टीचर एंड अबाउट आवर फ्रेंड एंड अबाउट आवर पीयर ग्रुप।
तो हम जिनके साथ हम उठते बैठते हैं उनके बारे में, हमारी अपनी लाइफ के बारे में क्या हम सोच रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है एक पाथ अल्लाह ताला हमको लगा देता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ जो है टर्न ले लेती है। तो ये जो है थिंकिंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और उसमें भी पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि जितना हम पॉजिटिव रहेंगे तो उतना हमारी लाइफ में इजी जो है इजी होगी, और तमाम चीज़ें जो है हमारे साथ जो है अच्छी होने लगेगी। तो हमें जो है पॉजिटिव थिंकर बनना है, और बहुत बार पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करने के लिए हमें कभी कभी वर्कशॉप्स भी करने पड़ते हैं। बहुत बार में जो सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ लेक्चर्स सुन ले, लेकिन हमें कभी कभी काउंसलर की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत बार ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग की वजह से भी इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और अपने माइंड को वो फोकस नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ का ध्यान हमें रखना है। फिर उसके बाद वी कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ आवर बिहेवियर दैट कम्स अंडर आवर मेंटल हेल्थ। हमारी मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए हमारा बिहेवियर पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहेवियर भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होगा आपका नॉर्मल बिहेवियर एंड सेकेंड वन इज आपका एबनॉर्मल बिहेवियर। तो what exactly behavior is, we need to know before moving ahead कि what exactly behavior is, कि हमारा बिहेवियर, हमारा तरीका क्या है। तो बिहेवियर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एजुकेशन। बिहेवियर हमारे जो है तरबियत का अक्कास भी है, हमारे तालीम का अक्कास होता है, और इट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ what we read in a day and what we apply in our day। कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम समझ रहे हैं, उसको हम कितना हमारे डे टू लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये हमारा बिहेवियर पैटर्न डिसाइड करेगा। तो जो भी हम जो है हमारी तरबियत भी जो है हमारे बिहेवियर को डिफाइन करती है। अगर हम पढ़ कर उसको हमारे डे टू डे लाइफ में उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो दैट मीन्स के वी आर हैविंग अ नॉर्मल बिहेवियर। लेकिन अगर के बाद हमारे अंदर हम अगर कुछ बन जाते हैं, तो अगर हम हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो जाए कि नहीं, आई एम समथिंग एंड समवन, और एन हम जो है सबसे डिफरेंट है, या मैं बहुत बड़ी चीज़ हो गई हूँ, तो दैट इज़ जो है तकब्बुर। और तकब्बुर इंसान के अंदर नहीं आना चाहिए, ना माल का, ना औलाद का, ना तालीम का। तो ये तमाम चीज़ों को भी हमें मेंटेन करना होगा। अगर हम जो है पढ़ लिखने के बाद भी अगर हम कहीं ना कहीं शो ऑफ का शिकार हो रहे हैं, या का शिकार हो रहे हैं, तकब्बुर हमारे अंदर आ रहा है, या हम अपने से कमतर लोगों को जो है जगह नहीं देते हैं, या हम उनको अपने से लो स्टीम जो है महसूस कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वी आर हैविंग एबनॉर्मल बिहेवियर। और जो भी हम पढ़ते हैं उसका रिफ्लेक्शन हमारी लाइफ में होना चाहिए, और वो हमारे नॉर्मल बिहेवियर को डिसाइड करता है। अगर हम इन चीज़ों को मेंटेन नहीं करेंगे, तो बहुत बार हम जो है बहुत सारी डिसीजेस का, अगर हमारी मेंटल हेल्थ जो है अच्छी नहीं होगी, तो हम बहुत सारी डिसीजेस का हम शिकार हो जाएंगे, जैसे कि ओवर थिंकिंग हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर है, डिप्रेशन, एंजाइटी और इंसोम्निया। ये तमाम चीज़ें जो है हमारी मेंटल हेल्थ के सही ना होने की वजह से ये सारी डिसीजेस हमारे अंदर पैदा हो जाती है। और एक और चीज़ जो होगी कि हम जो है अटेंशन डेफिसिट हो जाते हैं, यानी बहुत बार हम फोकस नहीं रह पाते। हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे, हम याद भी कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड पता चलता है कि रिजल्ट तो हमारा, हमने पढ़ाई की मोर देन 200%, बट आवर रिजल्ट कम्स नॉट मोर देन 45%। तो ये ऐसा क्यों होता है कि हम पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन बाय द पासिंग टाइम वी रियलाइज के व्हाट वी रिकॉल, व्हाट वी मेमोराइज, उसमें का हमें 20% भी याद नहीं रहा। और वो क्यों हुआ? क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ सही नहीं थी, हम जो है फोकस नहीं थे, हम अटेंशन डेफिसिट के शिकार थे। इसलिए हमने जो है हमारी तवज्जो जो मरकूज़ होनी चाहिए थी, एक जगह पे स्टिक होनी चाहिए थी, वो हम जो है मुंतशिर हो गए। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमारी मेंटल हेल्थ को डिफाइन करती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पावर है वो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग में है, हमारा नॉर्मल बिहेवियर होगा। और पॉजिटिव थिंकिंग में तो इतना पावर है कि पॉजिटिव थिंकिंग से ऐसे ऐसे डिसीजेस भी जो है क्योर हो गई, जिनका अभी तक मेडिकल साइंस से भी कोई ट्रीटमेंट आज तक जो है नहीं निकाल सकी है, लाइक कैंसर एंड ऑल। कि हमारे पास युवराज सिंह इतना बड़ा प्लेयर है, उसने जैसे कैसे डिफीट किया अपने कैंसर को। कैंसर अभी तक ला इलाज बीमारी है, इसका अभी तक कोई इलाज जो है निकला नहीं। दो के रिसर्च बहुत चालू है, लेकिन अभी भी एक पर्टिकुलर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक नहीं निकल पाया। लेकिन साइंस ने और स्टडीज़ ने ये शो किया है कि जब इंसान का जो है पॉजिटिव थिंकिंग जो रहेगा और उससे चीज़ों को डील करने के लिए वो पॉजिटिवली उसको टेकअप करता है, तो वो ऐसी चीज़ों को भी डिफीट कर सकता है जिसके कोई इलाज भी नहीं होगा। तो वैसे ही हमारा स्टडीज़ भी है, हमारे डे टू डे लाइफ भी है, हमारे पर्सनल अफेयर्स भी है कि हम जो भी रूटीन हमारा होता है इधर विद आवर पेरेंट्स, विद आवर टीचर्स, और हमारे अगर हम मदर है तो हमारे बच्चों के साथ हमारा अगर कुछ नहीं बन पा रहा है, तो
ये तमाम चीज़ों को हमको पॉजिटिवली टेकअप करना होगा और हमारे नॉर्मल बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करना होगा, तभी जाके हम ये तमाम चीज़ों को डील कर सकेंगे. नाउ कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड पार्ट ऑफ आर वेल बीइंग, दैट इज सोशल हेल्थ. सोशल हेल्थ भी जो है समाजी सेहत. समाजी सेहत को हम डिफाइन करेंगे, इसके अंदर 3 चीज़ें आती है. फर्स्ट आएगा रिलेशनशिप, second we have to create the boundaries to maintain our social health, and third one we have to adopt and balance on our social situations. इन 3 चीज़ों को अगर हम सम अप करते हैं, इन 3 चीज़ों को हम एक जगह लेकर आते हैं, देन ओनली वी कैन मेंटेन आवर सोशल लाइफ. और सोशल लाइफ को आप कह रहे हो कि हेल्थ में सोशल हेल्थ कैसे आ गई, लेकिन सोशल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी ओवरऑल लाइफ स्टाइल में, क्योंकि हमने बारहा पढ़ा भी है, बुक्स में पढ़ते भी है कि वी आर अ सोशल एनिमल, है ना, हम समाजी जानवर. अगर इसको हम सोशल एनिमल ना भी कहें तो हम जो है समाज का एक अटूट हिस्सा है. बीइंग अ ह्यूमन वी आर, हम जो है समाज का एक अटूट हिस्सा है, तो हमको ये तमाम चीज़ों को मेंटेन करना होगा. वी कांट आइसोलेट आवर सेल्फ फ्रॉम सोशल स्टेटस, है ना. सोशल हेल्थ से या सोशल स्टेटस से या लोगों से मिलने मिलाने से हम अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते. बहुत बार हाँ, नेचर का एक हिस्सा होता है कि बहुत से लोग इंट्रोवर्ट होते हैं या एक्सट्रोवर्ट होते हैं. जो इंट्रोवर्ट होंगे वो अकेले रहना पसंद करेंगे, लेकिन लोनलीनेस डजंट मीन कि आप जो है सोशली आइसोलेट हो जाए, है ना. आपको समाज में रहते हुए समाज की चीज़ों को अडॉप्ट करना होगा. उसमें सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो हमारे रिलेशनशिप मैटर्स होगा. तो रिलेशनशिप जो है 3 चीज़ों की बुनियाद पर बनते हैं. पहला जो रहेगा, एक मफाद की बुनियाद पर इंसान रिलेशनशिप बनाता है. दूसरा रहेगा कि एक दोस्ती की बुनियाद पर उसके रिलेशंस बनते हैं. और थर्ड वन इज खुलूस की बुनियाद पर, कि उसका कोई किसी से कोई गर्ज नहीं रहेगा, कोई उसका यानी किसी से उसको बैक में कुछ कुछ नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए उन रिलेशनशिप्स को मेंटेन करता है. तो ये तमाम चीज़ों में हमको, जब हम ये रिलेशनशिप बनाते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सबसे अच्छा रिलेशनशिप कौन सा रहेगा, दोस्ती वाला रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, मफाद की बिना पर यानी कोई बेनिफिट के बिना पर बनाया गया रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, या बेगर्ज और खुलूस वाला रिलेशनशिप अच्छा रहेगा? एनीवन? यस, एनीवन प्लीज, यू कैन ओपन योर माइक. कि 3 रिलेशनशिप्स में अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा रिलेशनशिप अच्छा रहेगा? एम आई ऑडिबल? यस, यू कैन कम्युनिकेट विद मी. Anyone please, you can open your mic. No one? Family. Yes, Family. family. Yes, yes. फैमिली तो है, लेकिन व्हाट आई डिफाइन अर्लियर कि रिलेशन 3 चीज़ों की बुनियाद पर होता है. एक दोस्ती, और एक खुलूस वाला रहेगा, और एक रहेगा मफाद की बुनियाद पर. यस, खुलूस वाला रिश्ता मैम. बट ऑब्वियस दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि बट ऑब्वियस है, अगर हम चीज़ों को डिफाइन करना Okay. Am I audible? And host, please let me know Yes, ma'am, you're how much audible. time I have. In how much time I have to conclude? Ma'am, 2 Okay, can I minutes. proceed? Okay, okay. Okay, inshallah, I'll try to sum up in 2 minutes. हम लोग देख रहे थे कि सोशल
हेल्थ भी जो है अकॉर्डिंग टू WHO हमारी सोशल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रिलेशनशिप मैटर करता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है वो खुलूस की बुनियाद पर बनाया हुआ रिलेशन होता है, फिर चाहे वो दोस्ती का रिलेशन हो, चाहे वो हमारे ब्लड रिलेशनशिप्स हो, या हमारी दूसरों के साथ हो जिन्हें हम जानते भी नहीं हो, लेकिन अगर हमारे अंदर खुलूस है और अल्लाह की रज़ा का जज्बा है तो हम जो है ऐसे रिलेशनशिप्स को बिल्ड करेंगे। लेकिन जब भी हम कोई रिलेशन बना रहे तो वी नीड टू रिमेंबर दैट वी हैव टू क्रिएट द बाउंड्रीज, कि हम एक हुदूद अरबा में रहकर ही उन तमाम रिलेशंस को हमें मेंटेन करना होगा। ऐसे हमने दोस्तियाँ की है तो दोस्तियों को हम हमारे घर वालों पे फौकियत दें, और घर वाले जो है घर वालों की हम बात ना माने, और बस हम सारी चीज़ों जो है होल एंड सोल हमारे फ्रेंड सर्कल बन जाए, या होल एंड सोल हमारे टीचर्स बन जाए, या होल एंड सोल हमारे नेबर्स बन जाए। तो ये बाउंड्रीज़ को डिफाइन करना भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ जब हम सोशल हेल्थ की तरफ बढ़ते हैं तो हमें जो है उस वहाँ के अडॉप्ट करना पड़ता है और बैलेंस करना पड़ता है सिचुएशन को, कि वहाँ का तौर तरीका क्या है। तो जैसे अगर सम माइट बी लिसनिंग मी फ्रॉम गल्फ कंट्रीज, सम माइट बी लिसनिंग फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया का क्या अडॉप्शन रहेगा सोशल